Hello dear students. So we have completed studying Mendel's monohybrid cross and dihybrid cross, from which we studied two laws for the inheritance of the traits from one generation to the next generation. The two laws are law of segregation, which we derived from the monohybrid cross, and law of independent assortment, which we derived from the dihybrid cross. Right students? Now today we will study the next and one of the important and interesting topic, that is how to determine our blood group. Yes, you will understand why your blood group is that particular blood group. Okay, but before talking about the blood group topic, let me discuss two small topics with you. How are the traits? Traits means body characters, whether physical characters or mental characters. How are the traits inherited? Means how are the characters transmitted from one generation to the next generation? Very simple. Through the process of sexual reproduction with the help of gametes. Because gametes consist of chromosomes from the parent's body, right? For example, in case of humans, the egg consists of 23 chromosomes and the sperms consist of 23 chromosomes. These come together during the process of fertilization to form a zygote. So zygote has two sets of chromosomes, one from father, one from mother. And out of these two chromosomes, the one which is dominant will express itself, right? Okay. So students, the traits are inherited through gametes during the course of sexual reproduction from parents to offspring, right? In asexual reproduction also directly by the process of cell division. In asexual reproduction by the process of cell division, that is mitosis, where whatever chromosomes are there in the parent cell gets doubled first and then they get distributed into the daughter cells, right? Okay. So the simple answer in sexual reproduction through gametes, the traits gets inherited. Now the next question that also we have discussed, how do a gene controls a trait? Again, trait means body character. एक जीन हमारे बॉडी का ट्रेट दैट इज कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करता है, वही अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप में भी. ओके, वी हैव स्टडीड दिस स्टूडेंट्स. व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट? डीएनए के छोटे छोटे पीस करोगे तो वो जो पीस ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन, व्हिच कंसिस्ट ऑफ triplet codons on it, right students? The genes consist of triplet codons. Now it depends on that gene कि उसके ऊपर एक ट्रिपलेट कोडॉन होगा, दो होंगे, तीन होंगे, डिपेंड कौन सा बॉडी कैरेक्टर है उस पर डिपेंड करता है कि जीन के ऊपर कितने ट्रिपलेट कोडॉन्स है. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. ट्रिपलेट कोडॉन्स मींस व्हाट? सपोज दिस इज अ जीन, अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, एक पीस है डीएनए का, इसके ऊपर 1 2 3 कितने ट्रिपलेट कोडॉन्स है? 3. सपोज ये है ATT, ये है CGGA, ये है GAT, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज दिस ATCG? दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस, adenine, thymine, cytosine, guanine, right? Now each triplet codon is responsible to produce what? Correct, a particular amino acid as per the code. Means पहला कोड क्या है? ATT. तो सपोज ये प्रोड्यूस करेगा अमाइनो एसिड X. ओके, अमाइनो एसिड अ टाइप ऑफ केमिकल. दूसरा कोड सेम है क्या? इज इट ATT? नो, इट्स GGA. तो जो सेकेंड ट्रिपलेट कोडॉन है, कोड अलग तो अमाइनो एसिड भी अलग. सपोज ये है Y. तीसरा कोड भी सेम है क्या किसी के साथ? नहीं, ये भी अलग है तो अमाइनो एसिड अलग. ना फॉर सपोज यहाँ पे और एक चौथा ट्रिपलेट कोडॉन मैंने निकाला एंड दैट इज ATT. व्हाट विल बी द अमाइनो एसिड? X. Correct. And it's not necessary
कि एक जीन पे हमेशा अलग अलग कोडॉन्स ही होते हैं. दे कैन बी सेम कोडॉन्स रिपीटिंग अगेन. ओके, तो ये जो मैंने नीचे लिखे हैं ये है अमाइनो एसिड्स which are produced because of a particular triplet codon, particular code. Okay, now these amino acids will be produced by these codes and they will be bound with a special bond called as peptide bond. तो x y z x ये चारों अमीनो एसिड्स बाइंड हो गए एक दूसरे. जैसे वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, समझे, वैसे ये अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के बीच में? दैट बॉन्ड इज अ स्पेशल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. सो द पेप्टाइड बॉन्ड binds all the amino acids of the gene which is producing to produce a, bolo, amino acids when are bonded together, what is produced? Correct, a particular protein. Suppose यहाँ पे x y z x ये चार अमीनो एसिड्स बाइंड होके सपोज प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन. यस, हार्मोन्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स. हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो ये जो प्रोटीन है ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन. नाउ इफ दिस जीन इज देयर इन माय बॉडी, इट इज देयर, व्हाट डू यू सी? हाउ इज माय हाइट? इज माय हाइट dwarf or I am tall? Yes, I am in a category of a person who is a tall person. I am not a dwarf person because my body has these genes with these codes. So my body is producing these amino acids. So my body is producing this protein that is growth hormone. मेरी बॉडी में ये जीन होने की वजह से ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से मेरे बोन्स इलोंगेट हो रहे हैं एंड मेरी हाइट टॉल है. अब जिसके बॉडी में ये जीन नहीं है, आर यू गेटिंग मी? सपोज GAT के बजाय GTT है, कोड बदल गया तो अमीनो एसिड भी बदल गया. इधर GAA की बजाय GGA की बजाय GAA है, कोड बदल गया, अमीनो एसिड बदल गया. अब यहाँ पे दो अमीनो एसिड बदल गए, तो ये चारों अमीनो एसिड जब बाइंड होंगे तो सेम यही प्रोटीन प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं, अमीनो एसिड बदले मतलब प्रोटीन भी बदल गया. तो ये जो पर्सन है उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ही प्रोड्यूस होगा लेकिन लेस ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू चेंज इन द कोड्स. समझे? तो how do gene controls the body character? Because gene consists of triplet codons which synthesizes amino acids. These amino acids bind together to produce special proteins which decides our body character. growth hormone body में है तो height है, growth hormone body में कम produce हो रहा है क्योंकि gene अलग है तो height भी कम है. That's it. If I am having a dark skin color, it means मेरे body में वो type का gene है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है. यस, मेलानिन. मेलानिन नाम का एक ब्राउन कलर का प्रोटीन होता है. अगर मेरे स्किन के अंडर ये प्रोटीन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि मुझ में वो जीन है जो मेलानिन ज्यादा सिक्रीट करता है, तो मेरा स्किन कलर डार्क है. जिनका स्किन कलर बहुत फेयर होता है उनमें जीन अलग है, उनकी बॉडी में मेलानिन कम सिक्रीट होने वाला जीन है तो वो फेयर है. माई हेयर आर स्ट्रेट, somebody's hair are curly. My hair are black, someone's hair are blonde. Blonde मतलब होते हैं ना गोल्डन वगैरह ऐसे, राइट? येलो नहीं, सोनेरी बोलते हैं जिसको हम सिंपल मराठी में. तो ये जो भी बॉडी कैरेक्टर्स है किसकी वजह से है? मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स किसकी वजह से है? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन्स. एंड ट्रिपलेट कोडॉन्स किस में होते हैं? जीन्स. सो इन दिस वे जीन्स with the help of their triplet codons synthesizes amino acids and a particular protein which controls the body character. Understood students? तो ये दो पॉइंट्स प्लीज नोट्स भेजे हैं, रीड करो. वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जो लाइव सेशन होगा नेक्स्ट, उसमें हम ये नोट्स रीडिंग ही करेंगे. ओके, नाउ जस्ट अ सेक. Now we'll discuss the next interesting topic, determination of blood group. Do you know which are the four types of blood group? Yes, blood group A, blood group B, blood group C नहीं, D नहीं, blood group AB and blood group O. Let me write down.
determination of blood group. There are 4 types of blood group: A, B, AB, O. Actually not 4, 8 types. कैसे? हमारा ब्लड पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता है, राइट? सो इन दैट केस A positive, B positive, AB positive, O positive, or A negative, B negative, AB negative, O negative, right? अब पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, A ही क्यों, AB ही क्यों, ये सब हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक के अंडर. सबसे पहले there are 3 genes responsible for the type of blood group in our body. The 3 genes there are 3 alleles. What are alleles? Genes for same character. Let me know. Gene IA, देखो I कैपिटल, AB कैपिटल, लेकिन I raised to A लिखना है. Gene IB and gene IO. We know in our body cells, not the gametic cells. In our body cells, the genes, that means the chromosomes, that means this DNA are in pairs, right? So, if my body cell has the gene pair IA or IA-IO, ये 2 जीन्स का पेयर. अब ये अलील्स है. अलील्स मतलब ये दोनों जीन्स कौन सा बॉडी कैरेक्टर डिटरमाइन करेंगे? ब्लड ग्रुप. फिर वो IA जीन हो या IO जीन हो या IB जीन, तीनों भी, जैसे कैपिटल T एंड स्मॉल t, हम इनको क्या बोलते हैं? अलील्स. जीन रिप्रेजेंटिंग द सेम कैरेक्टर. कैपिटल T भी हाइट रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल t भी हाइट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों अलग है क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट है, टॉलनेस के लिए है, स्मॉल t रिसेसिव है, शॉर्टनेस के लिए, बट टुगेदर दे रिप्रेजेंट द सेम कैरेक्टर. Are you getting that? So genes, different types of genes for the same character are called as alleles. Okay? अब मेरी बॉडी में अगर IA जीन है, then my blood group will be A. ये पॉजिटिव नेगेटिव फिलहाल मत सोचो, ये मैं थोड़ा बाद में, वो तुमको नहीं उतना डिटेल में, बट स्टिल आई विल टीच यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे IA-IO भी है, तो ब्लड ग्रुप O क्यों नहीं आया? डोमिनेंसी, राइट? मीन्स यहाँ पे IA जीन क्या है? डोमिनेंट है. IO है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो रिसेसिव है. अंडरस्टूड? नाउ इफ माय बॉडी हैज द जीन पेयर, माय बॉडी सेल हैज द जीन पेयर IB और बोलो इसके जैसे IB. अब दोनों डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप B. यहाँ पे IB जीन डोमिनेंट है लेकिन IO रिसेसिव, तो भी ब्लड ग्रुप B. तो फ्रॉम दीज 2 एग्जांपल्स व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? जीन A, IA एंड जीन IB आर डोमिनेंट. ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, लेकिन ये वाला रिसेसिव है. मीन्स अब मुझे बताओ, अगर मेरे बॉडी सेल में IA-IB है, अब ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. Yes, now the blood group will be blood group AB. तो जब दोनों जीन्स डोमिनेंट है और एक साथ है, and दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, then such genes are called as co-dominant genes. Not dominant, they are called co-dominant. मतलब दोनों भी एक्सप्रेस होते हैं, दोनों में से एक भी सप्रेस नहीं होता. Understood? But O is purely recessive. वो सिर्फ जब उसके जैसे के ही साथ होगा. We studied when recessive gene is with a recessive gene, then only it can express itself. तो बोलो ब्लड ग्रुप O का, ये मैंने जीनोटाइप लिखा है. If genotype is IAI, जीनोटाइप मतलब अगर ये जीन है मेरी बॉडी में, तो ही ब्लड ग्रुप A है, या ये तो ही ब्लड ग्रुप. So what will be the genotype for blood group O? Correct. It will be IO. Understood? So अब तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है सोचो. इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग ब्लड ग्रुप AB, इफ योर ब्लड ग्रुप इज AB, मीन्स तुम्हारे बॉडी सेल के अंदर जीन्स का पेयर कौन सा है? IA जीन भी है और IB. तुम्हारे दोनों जीन्स डोमिनेंट, दैट इज को डोमिनेंट जीन्स है.
राइट? अगर तुम में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है? ओ मीन्स यू आर बोथ द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेल आर रिसेसिव, दैट इज IO IO। समझे? अब ये जीन्स की वजह से ऐसा क्या होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है या AB या O, ये कैसे डिटरमाइन होता है? लेट मी शो यू डायग्राम। ये जो मैंने यहां तक बताया ये सिर्फ इतना तुमको है, इसके आगे अब मैं जो एक्सप्लेन करूंगी दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नो एंड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, यू टेल मी, हमने अभी पढ़ा जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन्स, क्योंकि जीन्स के ऊपर होते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स, ट्रिपलेट कोडॉन्स से प्रोड्यूस होते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड कंबाइन होकर प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन्स, मींस इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट जीन्स प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स। अब ब्लड ग्रुप वाले जो प्रोटीन्स है उनको स्पेशल नाम है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्लड ग्रुप वाले जो प्रोटीन्स है, द प्रोटीन्स जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होता है, द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट विच डिसाइड्स द blood group are called antigens. What they are called? Antigens. Let me show you. Suppose ये है हमारा blood and blood. blood में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्लूइड ऑफ द ब्लड दैट इज प्लाज्मा, एंड उसके अंदर होते हैं ब्लड सेल्स दैट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट। यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए सिर्फ RBC रिस्पॉन्सिबल होते हैं, WBC एंड प्लेटलेट्स का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं होता। तो मैं एक ही दिखा रही हूँ यहाँ पे RBC, रेड कलर में दिखा रही हूँ तो समझो ये RBC है। सो दिस इज आवर रेड ब्लड सेल, एंड ये बाहर जो भी है वो क्या है? प्लाज्मा, ब्लड का फ्लूइड, राइट स्टूडेंट्स? हमने ये पढ़ा है, ब्लड में फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और वो प्लाज्मा में ब्लड सेल, जैसे RBC, इसके साथ WBC, प्लेटलेट्स भी, बट फिलहाल हमको सिर्फ ब्लड ग्रुप पढ़ना है, तो आई एम शोइंग यू RBC। अब अगर मेरे बॉडी में IA जीन है या IAIO जीन है, तो बिकॉज ऑफ दिस जीन IA, हियर बी एंड हियर आल्सो, राइट? बिकॉज ऑफ द जीन IA मेरे RBC के सरफेस पे, आर यू गेटिंग मी? ये RBC का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन नहीं, क्या बोलेंगे हम? एंटीजन। बिकॉज ऑफ द जीन IA द एंटीजन A will be produced on the surface of RBC। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको मैं बोलूंगी एंटीजन A, a special protein produced because of the genotype IAIA और IAIO। समझे? तो ये हो गया मेरा ब्लड ग्रुप A। पॉजिटिव नेगेटिव का वो थोड़ा बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे इफ आई एम हैविंग जीनोटाइप IB और IBIO, बोलो जीनोटाइप में IB जीन है तो यहाँ पे एंटीजन कौन सा तैयार होगा, कौन सा प्रोटीन तैयार होगा? एंटीजन B। ये है एंटीजन B का शेप। यस, एंटीजन A प्रोटीन अलग स्ट्रक्चर होता है, एंटीजन B प्रोटीन अलग स्ट्रक्चर होता है। समझे? तो ये हो गया मेरा ब्लड ग्रुप B। अब यहाँ पे मेरा जीनोटाइप है IOIO, मतलब ना मेरे पास IA जीन है ना IO जीन है, सॉरी IB जीन है, मीन्स मेरे पास ना एंटीजन A तैयार होगा ना एंटीजन B, एंड IO मीन्स हियर इट इज 0, नो प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेरे RBC के सरफेस पे एक भी एंटीजन, ना A ना B, कुछ भी तैयार नहीं होगा। सो दिस इज माय ब्लड ग्रुप O। इजी अंडरस्टूड? सो द पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप O, उसके RBC के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, मीन्स उसके RBC के सरफेस पे कोई भी प्रोटीन नहीं होता। Isn't it easy and interesting? And I am telling you one thing, ये नोट्स में नहीं है, तो better you write it down from the video if you want. सिलेबस में तो नहीं है, but if you want this extra information, you can write it. So then students,
कैन यू टेल मी द कॉम्पोजिशन ऑफ, ये है आरबीसी, ये है हमारे ब्लड का फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा। ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा? अब यहाँ पे दोनों जीन्स है, आई ए जीन भी है एंड आई बी जीन भी है। आई ए की वजह से एंटीजन आई ए तैयार हो गया एंड आई बी की वजह से एंटीजन आई बी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए ए, दीज आर एंटीजन ए, दीज आर एंटीजन बी। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? एंटीजन ए भी है एंड एंटीजन बी भी, एंड दिस एंटीजेंस आर नथिंग बट स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस जीन्स दैट इज एलील्स। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? दोनों है ना, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। अंडरस्टूड? सो जो टाइप के जीन्स हमारी बॉडी में होंगे वो टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अंडरस्टूड? ओके, एनी डाउट्स? नाउ लास्ट थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, ये नहीं है तुमको सिलेबस में, फिर भी पढ़ा रही हूँ, प्लीज अगर तुमको चाहिए तो लिख के लो नोटबुक में, ये मेरे दिए हुए नोट्स में नहीं है। अब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होता है? देयर इज वन मोर एंटीजन दैट इज कॉल्ड, सॉरी, हाँ, दैट इज कॉल्ड एंटीजन डी, दैट इज कॉल्ड एंटीजन डी। एंटीजन डी के लिए भी स्पेशल जीन होता है हमारी बॉडी में, उसको सिर्फ जीन बोलते हैं। ओके, स्पेशल जीन, उसको ऐसे आईडी सिंबल नहीं होता, आई रेज टू डी नहीं। सो देयर इज अ स्पेशल जीन विच प्रोड्यूसेस द प्रोटीन एंटीजन डी। तो अगर मेरी बॉडी में ये स्पेशल जीन है तो मेरे सरफेस पे, मेरे मतलब आरबीसी के सरफेस पे ये होगा क्या? एंटीजन डी होगा। एंड अगर एंटीजन डी है तो मैं हूं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। अगर ये नहीं था तो यही ब्लड, जैसे कि यहाँ पे बी है लेकिन एंटीजन डी, ब्लैक स्पॉट्स मतलब अब एंटीजन डी याद रखो है क्या? नहीं, तो ये हो गया बी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, बताओ चलो, एंटीजन ए है? नहीं। एंटीजन बी है? नहीं, इसलिए ये ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन इसके ऊपर एंटीजन डी है तो ये हो गया ओ पॉजिटिव। इजी स्टूडेंट्स? बोलो इसका क्या होगा? मैंने एंटीजन डी नहीं निकाला, नहीं है, तो ये हो गया ए बी नेगेटिव। समझे? लेट मी टेल यू, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डी इन द बॉडी और ऑन द surface of the RBC is a dominant character. 80% of the human population is having positive blood groups. Remaining 20% of the human population is having negative. तो dominant character क्या हुआ? Having a positive blood group. Having a positive blood group means हमारी बॉडी में ये स्पेशल जीन है जो एंटीजन डी हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रोड्यूस करता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स you all have understood determination of blood group and how are these determined on the basis of the proteins called as antigens present on the surface of RBCs. अब अगर एंटीजेंस है आरबीसी पे तो प्लाज्मा में उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होते हैं। फिर वो ब्लड कंपैटिबिलिटी, मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप बी चढ़ाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मुझे ए पॉजिटिव का ही मिलना चाहिए, वो जो भी है, लेकिन वो बहुत ही डिटेल में हो जाएगा, तुम लोगों को उतना डिटेल में है नहीं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, ये सिर्फ मैंने 10% बताया, रिमेनिंग 90% यू स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, उनको 12th में ये डिटेल में है। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप अंडरस्टूड? ये चाहिए, जो जो मैंने वीडियो में जैसे जैसे बताया लिखते गई वैसे लिख लो, इट्स योर विश, you want to write this or not, you want to study this or not, because this is not there for you in your syllabus. Now एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, जस्ट इन शॉर्ट आई विल टेल यू। If father is having heterozygous
blood group A and mother is having homozygous blood group B. What are the possibilities of blood group in child? मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हमको ढूंढने हैं. वेरी सिंपल स्टूडेंट, एक स्टेप में आंसर है. एंड यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है. फादर का ब्लड ग्रुप देते हैं. फादर का ब्लड ग्रुप है ए, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगसली ए है एंड मदर का होमो. अब ये इंपॉर्टेंट है. हेटेरोजाइगस मीन्स वन डोमिनेंट वन रिसेसिव. आर यू गेटिंग? हमने पढ़ा है. तो ब्लड ग्रुप ए मीन्स IA होगा क्या फादर का. होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस मीन्स IAIO होगा फादर का. मदर का क्या है? होमोजाइगस बी है, मतलब दोनों भी IB होंगे. होमोजाइगस बोथ विल बी सेम. समझे? तो फादर का ये जीन और ये जीन मदर के साथ फ्यूज होगा, बनेगा IAIB कॉम्बिनेशन. और IA can fuse with this also. Again IAIB combination. और this will fuse with this. IB पहले लिखोगे, IO बाद में, क्योंकि IO रिसेसिव है एंड B डोमिनेंट. या ये और ये कॉम्बिनेशन. So there are two possibilities of a child to having a blood group. IAIB means what will be the blood group of the child? AB. ये भी क्या होगा ब्लड ग्रुप? AB. ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? B, क्योंकि IO रेसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. ये क्या होगा? तो या तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आइदर इट विल बी B. द चाइल्ड विच इज बोर्न टू दिस पेरेंट्स विल बी आइदर विद ब्लड ग्रुप B और विल बी आइदर विद ब्लड ग्रुप AB. समझे? अब यही अगर दिया, इफ पेरेंट इज ऑल्सो होमोजाइगसली A. होमोजाइगस मीन्स IA एंड मदर इज ऑल्सो IB. दोनों भी होमोजाइगस है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है. राइट? कुछ भी क्रॉसिंग करो, it will be IAIB only. Means child will have the blood group AB only. समझे? तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन MCQ में या 1 और 2 मार्क के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. Got it? So you can try on your own. You can ask your parents what is their blood group and what is your blood group, and उससे you can identify कि parents homozygous होंगे, heterozygous, तुम लोग क्या होगे. Right? So students, here we completed the topic determination of blood group. Thank you.